Good afternoon, students. Today's topic of study is opium alkaloids. Now starting with the topic, you can see clearly this is the image of opium. Papaver somniferum is the botanical name of the drug opium. It is the image of latex, from which latex we got. Next, the synonym is poppy latex. You can clearly see these. From this we collect the latex, poppy latex and gum opium. This is the image of the plant. Next, pharmacognostic features of this particular drug. Botanical origin, Papaver somniferum. Botanical origin means botanical name of opium is Papaver somniferum. It should be in italics. ठीक है. Family is Papaveraceae. English name, in English it is known as opium. In Urdu it is known as अफीम. ठीक है. Local name is opium poppy and moss seed. The part used are capsules, flowers, seeds and latex. Now the chemical class of this particular drug is alkaloidal drug. Okay. Next is opium alkaloid. This drug is from the category alkaloidal drug. Alkaloids, you already know what alkaloids are. Now opium is the air dried milky exudate or latex obtained by, means opium क्या है, एयर ड्राइड मिल्की एक्सूडेट्स हैं और लेटेक्स है जो कि यूज़ होता है एज अ ओपियम अल्कलॉइडल ड्रग विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंसीजन in the unripe capsules of the opium poppy Papaver somniferum. You can see this image. इसमें से हम जो ये आपका ड्रग है, इसमें से हम आपका लेटेक्स को इंसीजन बना के, इंसीजन मीन्स कट बना के हम अपना लेटेक्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जो कि यूज़ होता है एज अ ओपियम अल्कलॉइडल ड्रग. ठीक है. For opium production, the ripening capsules which are just changing color from blue to green to yellow, means color changing phases हैं इसके. First blue, then green, then yellow, are carefully incised with a knife. Incise means cut लगाते हैं with the knife to open the latex tubes. Although the ripe poppy capsule can contains up to 0.5% total alkaloid, opium represents a much concentrated form and up to 25% of its mass is composed of alkaloid. Means इसका जो 25% मास है आपका, जो कंसनट्रेटेड फॉर्म है ओपियम अल्कलॉइड की, उसमें आपका 25% ऑफ अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होता है. मींस मोर देन 40 अल्कलॉइड्स वर आइडेंटिफाइड इन 25% मास ऑफ ओपियम. ओके. नेक्स्ट, द नेक्स्ट ड्रग, मतलब नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राइड लेटेक्स. लेटेक्स क्या है? जो लेटेक्स हम इंसीजन डाल के हम जो लेटेक्स कलेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लांट में से, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. लेटेक्स इज द मिल्की सैप ऑफ मैनी प्लांट्स विच कोएगुलेट्स ऑन एक्सपोजर टू एयर. मीन्स जब आप लेटेक्स को थोड़ी देर एयर में छोड़ देंगे खुला, तो वो क्या करेगा, कोएगुलेट हो जाएगा. मीन्स इकट्ठा होके एक मास प्रिपेयर कर देगा. ठीक है. इट इज़ एन इमल्शन or suspension in which the aqueous phase is composed of mineral salts. मीन्स ये इमल्शन है और सस्पेंशन है, जो कि मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या होता है. उसका जो एक्वस फेज होता है वो, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मिनरल सॉल्ट्स, प्रोटीन्स, शुगर्स, टैनिन्स एंड अल्कलॉइड्स. एंड द ऑयली फेज इज composed of oils and resins. ठीक है. दो phases है. First is aqueous phase, second is oily phase. Aqueous phase is composed of mineral salts, proteins, sugars, tannins and alkaloids. Latex is usually produced in lenticerous tissues, which may be lenticerous cells, lenticerous tubes, lenticerous vessels. Originate from many cells. Example, opium. ठीक है. Next is geographical source. It is native of West Asia. It is cultivated and collected mainly in India, Iran, Yugoslavia, Pakistan, Afghanistan, Burma and Thailand.
इन इंडिया मेनली इट इज़ ग्रोन इन उत्तर प्रदेश गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन होशियारपुर एंड इन जालंधर इन पंजाब, ऑल्सो इन नीमच इन मध्य प्रदेश, ठीक है. नेक्स्ट इज cultivation and collection and preparation of opium alkaloid. The seeds of opium are cultivated in the form of batches, ठीक है, batches form में हम cultivate करते हैं. This is to ensure that the entire crop is not affected by climatic conditions like frost or drought, ठीक है. किसी भी टाइप की जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं लाइक फ्रॉस्ट मीन्स जमना एंड ड्रॉट, ठीक है, इन सब से अफेक्ट ना हो, इसलिए हम इसकी कल्टीवेशन बैचेस में करते हैं. द कल्टीवेशन इज़ डन इन द मंथ्स बिटवीन द मंथ सितंबर एंड अप्रैल, ठीक है. सितंबर से अप्रैल के बीच का जो टाइम होता है उसमें हम इस पर्टिकुलर प्लांट को कल्टीवेट करते हैं. A gap of 25 centimeter should be maintained between two consecutive plants. Means 25 centimeter का गैप होना चाहिए दो प्लांट के बीच में, ठीक है. इसमें आपका जो ओपियम अल्कलॉइड है सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज़ कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, ठीक है, क्योंकि इसकी माइक्रोस्कोपी हमारे को पढ़नी नहीं है, इसलिए हमें कल्टीवेशन एंड कलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है. बिफोर सोइंग द सीड्स दे आर मिक्सड विथ सैंड्स प्रॉपरली. मीन्स बिफोर सोइंग सीड्स को बोने से पहले हमें उसे सैंड्स के साथ प्रॉपरली सैंड के साथ मिक्स करना होता है, ठीक है. About 5 to 6 capsules appear on each plant, ठीक है, and it flowers in the month of May to June. मीन्स जो इसकी फ्लावरिंग होती है वो कौन से मंथ्स में होती है, जब हम उसको देखेंगे मई में और जून में, ठीक है. नेक्स्ट इज आफ्टर द पेटल्स फॉल फ्रॉम द पॉपी the pod which is about the size of a golf ball, means you can see the pod, the whole pod is look like a golf ball, ठीक है. तो आफ्टर द पेटल्स मीन्स जब पेटल्स गिर जाएंगी फ्रॉम द पॉपी, जो इसका पॉड है मीन्स ये होल पॉड, द पॉड विच इज़ अबाउट द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल इज लैंस्ड. लैंस मीन्स प्रिक करना है हमने उसको, ठीक है, प्रिक करना आप समझते हैं. एंड द ओपियम लेटेक्स इज एक्सयूडेड फ्रॉम दैट, ठीक है, जो लेटेक्स इस पॉड के अंदर प्रेजेंट होगा वो एक्सयूडेट हो जाएगा बाहर की साइड. वॉट यू सी हेयर इज वन लैंसिंग मेड विद अ स्पेशल नाइफ विच हैज़ 4 ब्लेड्स, ठीक है. स्पेशल टाइप का हम नाइफ यूज़ करते हैं, उसमें 4 ब्लेड्स प्रेजेंट होते हैं, अबाउट 1/16 इंच अपार्ट, क्लियरली विजिबल इन द फोटो, यू कैन क्लियरली सी दिस नाइफ, ठीक है. इनिशियली द लेटेक्स इज ऑफ पिंक कलर, लेटर इट चेंजेस टू ब्लैक कलर. मीन्स इनिशियली जब आप लेटेक्स को इंसाइज करेंगे, ठीक है, पॉड में से, पर्टिकुलर ओपियम पॉड में से, तो वो पिंक कलर का होगा और धीरे धीरे ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर इट converted into the color black. Next, poppies are lanced in the afternoon, means जो pods हैं, poppies हैं, उनको हम prick करते हैं in the afternoon and the latex is scraped off in the next morning. means अगर आपने afternoon में इसको prick करा है तो next morning हम उसका latex scrap off करेंगे उसमें से. पॉड्स राइजन मीन्स पॉड्स क्या होगा, सॉफ्ट होंगे एट डिफरेंट टाइम्स इन द फील्ड्स, ठीक है. ईच पॉड कैन बी लैंस्ड फ्रॉम 4 to 7 टाइम्स. मीन्स एक पर्टिकुलर पॉड को, हर एक सिंगल पॉड को 4 to 7 टाइम्स हम प्रिक करेंगे, ठीक है. द लैंसिंग टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड अटेंशन, मीन्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड डील ऑफ टाइम ऑल्सो, ठीक है. टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है इसके कल्टीवेशन में, किस टाइम कौन सी चीज़ हमने करनी है. सेवरल पॉड्स कैन बी स्क्रैप्ड बिफोर द ओपियम इज प्लेस्ड इनटू अ कंटेनर, ठीक है. सो मैनी पॉड्स टू कट एंड स्क्रैप. नेक्स्ट, ओपियम कलेक्टेड इज़ वेड ऑन अ डेली बेसिस. मीन्स जो ओपियम हम कलेक्ट करेंगे उसे डेली बेसिस पे हमें वे करना होगा बिफोर एन ऑफिसर ऑफ द नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है. आफ्टर द लेटेक्स हैज़ बिन कलेक्टेड ऑल द पीजेंट्स फ्रॉम एन एरिया टेक देयर ओपियम टू अ वेमेंट सेंटर, ठीक है. जब सारा हमारा लेटेक्स कलेक्ट हो जाएगा फिर उसको हम वे करेंगे. देयर ओपियम हैज़ बीन स्क्रैप्ड इनटू स्टैंडर्ड कंटेनर. स्क्रैप करके हम एक पर्टिकुलर कंटेनर में रखेंगे जिसका पर्टिकुलर हमारा वेट होगा, ठीक है, वेइंग होगा, उसका प्रॉपर वेइंग करेंगे हम कंटेनर की जिसमें हम इसको स्क्रैप ऑफ करके रखेंगे. 1/10 ऑफ द हेक्टेयर प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लेटेक्स, ठीक है. Now macroscopic characteristics, odor, strong and characteristic odor,
अच्छा, इसकी ना 4-5 वेराइटीज़ हैं, ठीक है, उनके हम कलर और टेक्सचर के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ओडर इज स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टरिस्टिक, टेस्ट इसका बिटर होता है। कलर विच वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओपियम। फॉर इंस्टेंस, इंडियन ओपियम इज डार्क ब्राउन वाइल मैनिपुलेटेड टर्किश ओपियम इज चॉकलेट ब्राउन इन कलर। ठीक है, ये इसका बेसिक डिफरेंस है। नाउ मैक्रोस्कोपी ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ओपियम। we are going to discuss about the 5 varieties of opium here। ठीक है, 5 वेराइटीज़ जो हैं ओपियम की उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वेराइटी इज इंडियन ओपियम। ठीक है, इट इज़ डार्क ब्राउन इन कलर, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिकल पीसेस। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्यूब इट इज़ फाउंड। इट्स नेचर इज ब्रिटल एंड प्लास्टिसाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी इज पर्शियन ओपियम। इट इज़ डार्क ब्राउन इन कलर, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक शेप्ड मासेस। ठीक है, ईंट की शेप के मास में ये मिलता है। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ग्रैनुलर और नियरली स्मूथ विच हैव अ ब्रिटल टाइप ऑफ फ्रैक्चर। ब्रिटल मीन्स टूटने वाला फ्रैक्चर इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेचुरल टर्किश और यूरोपियन ओपियम। इट इज़ ब्राउन और डार्क ब्राउन इन कलर, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल और राउंडेड एंड समवट फ्लैटन मासेस। ठीक है, ऑन कीपिंग इट बिकम्स हार्ड, मीन्स कुछ टाइम के लिए जब हम इसे एक्सपोजर ऑफ एयर में रखेंगे इट बिकम्स हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। इट इज़ कवर्ड विद पॉपी लीव्स, मीन्स का स्ट्रक्चर है, कवर होता है ये पॉपी लीव्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी इज मैनिपुलेटेड टर्किश ओपियम। ठीक है, it is chocolate brown or dark brown in color internally. Internal surface is chocolate brown or dark brown in color and covered with broken poppy leaves externally. All over external area is covered with poppy leaves. It is found in the form of masses of type which are oval and flattened on upper and lower surface. ठीक है, oval and flattened होगा इसका upper और lower surface both. It is somewhat plastic or even brittle in nature. ठीक है, next category is manipulated European opium. It is dark brown in color internally and covered with broken leaves, broken poppy leaves से covered होता है. It is found in the form of elongated masses with rounded ends, firm, plastic and found with brittle fracture too. ठीक है, ये है इसकी 5 कैटेगरीज। फिर 5 कॉमर्शियल वैरायटी। अगर आपसे कभी भी ओपियम की कॉमर्शियल वैरायटी पूछी जाती है, इफ the question is asked write about the commercial varieties of opium. These 5 varieties of opium which are discussing over here, these are the commercial varieties basically. Next topic is chemical constituent. Chemical constituent means active constituent क्या क्या present है इसमें। Major chemical constituents are alkaloids हैं। ठीक है, 1/5 of total weight of drug. Principal alkaloid is present in this drug is morphine. मॉर्फिन प्रेजेंट होता है जो इसमें एज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, वो है 8 to 17%। नेक्स्ट, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नार्कोटिन, नॉस्केपिन that is 1 to 10%, codeine 0.7 to 5%, papaverine 0.5 to 1.5%, thebaine 0.1 to 2.5%, micoic acid which exists in combination with morphine, some amount of mucilage is also present, some type of sugars present, salts of calcium and magnesium is present, and wax, some amount of wax is also present in this particular drug opium. Next you can see opium alkaloids, इसका जो chemical constituent है उसको हम categorize कर सकते हैं, like you can understand it clearly here. Opium alkaloids which are divided into 3 chemical constituent categories like phenanthrene group, ठीक है, benzyl isoquinoline group and phenyl alkyl amine group. ठीक है, phenanthrene group further divided are morphine, codeine, thebaine. These constituent belongs to कैटेगरी फिनेंथ्रीन ग्रुप. ठीक है, फिनेंथ्रीन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज बेंजाइल आइसोक्विनोलिन ग्रुप. इसमें आपकी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है मेन, दैट इज नॉस्केपिन. नॉस्केपिन को नार्कोटीन भी बोलते हैं, एंड पेपावेरिन. ठीक है, वो किस कैटेगरी में है, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन ग्रुप. ठीक है, वो रिंग उसमें प्रेजेंट होगी. नेक्स्ट फिनाइल अल्काइलामीन ग्रुप, दैट इज नार्सिन. नेक्स्ट केमिकल टेस्ट. First of all, opium is dissolved in water
and then ferric chloride solution is added. ठीक है, it results in the reddish purple color. reddish purple color होगा जब ओपियम को हम डिजोल्व करेंगे ferric chloride solution में. The change in color occurs due to presence of meconic acids in opium. ठीक है, जो चेंज होगा कलर मीन जो रेडिश पर्पल कलर आएगा, इट occurs, it forms या it comes due to the presence of meconic acid in the opium. ठीक है, next test is when opium is treated with small amount of nitric acid, fuming nitric acid, orange red color is produced. ठीक है, orange reddish color is produced. This test basically occurs due to the presence of morphine in the opium. ठीक है, ये orange reddish color आएगा due to the presence of morphine. ठीक है, next is uses. अब जो इसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके डिफरेंट हम यूजेस देखेंगे. जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के यूजेस हैं वो अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. मॉर्फिन जो इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, मोस्ट पावरफुल एनाल्जेसिक है, विच यूज्ड इन द केसेस ऑफ सिवियर पेन एज पोस्ट ऑपरेटिव पेन. मीन्स जो ऑपरेशन के बाद का जो पेन होता है उसको रिलीव करने के लिए मॉर्फिन देते हैं एज अ एनाल्जेसिक. इट इज़ ऑल्सो help in relieving pain of bone fractures, cancer patients and in cases of angina pectoris. ठीक है, next it is a remedy in convulsions. various types of convulsions अगर किसी को होते हैं तो उसमें भी ये active है. precede the use of aesthetics to increase their efficacy. used as an antagonist for poisonous effects of other alkaloids. means जो different alkaloids हैं like strychnine, atropine and phytostigmine, उनके पॉइजनस इफेक्ट के अगेंस्ट एज एंटागोनिस्ट एक्ट करता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन. ठीक है, नेक्स्ट कोडीन. इट इज़ वीकर इन इंटेंसिटी देन मॉर्फिन. ठीक है, मॉर्फिन से इसकी इंटेंसिटी कुछ वीक है. इट प्रोड्यूसेस लेस टेंडेंसीज टू एडिक्शन. मीन्स इसकी जो कोडीन है, कोडीन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी लेस टेंडेंसी होती है एडिक्शन की. ठीक है, कोडीन डिप्रेसेस द कफ सेंटर इन द ब्रेन. मीन्स कोडीन हेल्प्स, मेन यूज है इसका कोडीन का, it depresses the cuff center which is situated in the brain. ठीक है, it causes constipation also and hypnosis. ठीक है, this is the structure of codeine. next is heroin. it is scientific diacetyl derivative of morphine. it is 5 times more potent as morphine. ठीक है, heroin is more potent than morphine. this is the structure of heroin, you can clearly see. नेक्स्ट इज पेपावेरिन. पेपावेरिन इज अ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट. ठीक है, इट्स मेन यूज इज स्मूथ मसल रिलैक्सेंट. नेक्स्ट वेरियस सब्सटीट्यूट्स ऑफ पेपावर सोमनिफेरम. पेपावर आर्जिमोन, पेपावर इंटरमीडिया, पेपावर ओरिएंटेट. ओके, ये आपको याद करने पड़ेंगे, मगअप करने पड़ेंगे. रिमेंबर द कॉज ऑफ डेथ due to opioid overdoses primarily from respiratory depression. Every form of addiction is bad, no matter whether the narcotic be alcohol or morphine or idealism. ठीक है, thank you. If you still have any doubt regarding this topic, you can ask questions. Thank you.